Assalamu alaikum, dear students of junior 6. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, open your English textbook, New Oxford Modern English 6. Dear students, after completing first unit Nico Bobinus and its subtopic Mother to Son, we are going to start unit 2, The Ransom of Red Chief. Before starting reading with translation, let me explain the whole story of this unit, The Ransom of Red Chief. What is the meaning of ransom? Ransom means the money or something you take in return of something. कि जब आप तावान, you say in उर्दू तावान, कि जब आप किसी की कोई चीज़ अगवा करते हैं या लेते हैं या ज़ब्त करते हैं तो उसको वापस करने के लिए जो आप पैसा मांगते हैं या कोई प्रॉपर्टी मांगते हो तो उसको तावान कहा जाता है. एंड Red Chief is the leader of Indian culture, and Red Chief means the leader who is painful for others due to his mischievous behavior. So this is the story of Ransom of Red Chief is a story by O. Henry, and this is a story of a boy Johnny who was kidnapped by two criminals. You can see in the picture the two men, Bill and Sam. These two friends were the kidnappers who kidnapped Johnny, who called himself Red Chief. So why they kidnapped a boy and they think about kidnapping a boy? Because they needed $2,000 more to buy a land in Western Illinois, and they thought of kidnapping a boy from the town, semi rural town, because they thought that the people living in the rural areas are more lovable, and they loved their family as compared to the people of the city. So when they kidnapped the boy of 10 years old and put him in a cave and camped there, the boy regarded himself a red chief because he put the fur in his head, and when they put him in a camp, he enjoyed being kidnapped. However, they get more than they have bargained for. Why they got more than they have bargained? Because Johnny's rough and wild behavior left Bill and Sam desperate, and they just wanted to get rid of the boy as soon as possible. So they write a letter to his father, Dr. Dorset, and you can see there are some lines which shows that this is the letter. They wrote two letters, one letter and then the answer of that letter by the father. So what was the conversation and how the kid behaved? Well, okay, how the kid the kid behaved uh, very badly, that especially Bill suffered a lot due to his behavior, and मैं वीडियो बना रही थी, पॉज की है मैंने. The Ransom of Red Chief. Red Chief का तावान. A story about a kidnapping. एक स्टोरी अगवा के बारे में, इन विच जिसमें द किडनैपर्स अगवा करने वाले गेट मोर, वो ज़्यादा हासिल करते हैं, देन दे बारगेन्ड फॉर, जिसका उन्होंने सौदा किया होता है उससे ज़्यादा वो हासिल करते हैं. क्या हासिल करते हैं? आई टोल्ड यू इन द स्टोरी, दे गेट मोर मीन्स के दे गेट अ रिलीफ फ्रॉम अ वेरी मिस्चीवियस बॉय,
एक बहुत ही शरारती लड़के से आज़ादी, सुकून, वो सुकून हासिल करते हैं. In the beginning of the story they want money, but at the end they don't need any money, they pay the money to get relief from the boy. लड़के से छुटकारा हासिल करने के लिए वो पैसे भी अदा कर सकते हैं, कर देते हैं. So it means they get more they bargained for. जिसका उन्होंने सौदा किया होता है उससे ज्यादा वो हासिल करते हैं. क्या? सुकून, छुटकारा उस शरारती बच्चे से. We were down south, हम जनूब में नीचे की तरफ गए. इन अलाबामा, अलाबामा है एक स्टेट इन अमेरिका, अमेरिका में एक स्टेट है. बिल डिस्क्रॉल एंड माई सेल्फ, बिल डिस्क्रॉल एंड मैं सैम. कौन है माई सेल्फ? सैम. सैम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. टू फ्रेंड्स हैं, बिल एंड सैम. सैम जो है वो नरेटर है, आपको कहानी भी पढ़कर बता रहा है. तो जिसमें जहां पे भी आई का वर्ड यूज हुआ होगा, वेन एवर द आई वर्ड इज यूज, इट मीन्स ही इज सैम, वो सैम है. आई, माई सेल्फ जो भी है ये सैम के लिए यूज हुए हैं. बिल और मैं या मैं खुद. वेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस, जब हमें ये अगवा करने का ख्याल, स्ट्रक अस हमारे माइंड में आया. बिल एंड मी हैड अबाउट $600. बिल और मेरे पास $600 थे. एंड वी नीडेड, और हमें ज़रूरत थी, जस्ट $2,000, सिर्फ $2,000 की ज़रूरत थी. मोर, सिर्फ $2,000 की मज़ीद ज़रूरत थी. टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न आइलैंड्स, हमें वेस्टर्न जो मगरबी आइलैंड्स है उसमें एक लैंड ख़रीदने के लिए हमें कितने डॉलर्स की ज़रूरत है? $2,000 मोर. वी फिगर्ड, हमने अंदाज़ा लगाया, दैट फैमिली लव, कि ख़ानदानी प्यार, इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़. सेमी मीन्स नीम, रूरल मीन्स देहाती. नीम देहाती मीन्स कि जो टाउन के एरियाज होते हैं, जो कि सिटी से भी मिलते हैं और गांव से भी मिलते हैं, विलेज से भी. तो थोड़े से उनमें विलेज वाला भी पन होता है और थोड़ा सा शहर वाला भी. तो दरमियानी जो लोग होते हैं. सेमी रूरल कम्युनिटीज, कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर. जब बहुत सारे ग्रुप एक लोगों का मिलकर रहता है तो वो कम्युनिटी बनाता है. एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू डू आर किडनैपिंग इन समिट, कि हम समिट एक इलाका है साउथ इसमें अमेरिका में, तो वहाँ एक टाउन है, वहाँ पे हम अपनी किडनैपिंग करने का फैसला किया. स्मॉल टाउन, एक छोटा सा जो कस्बा है. वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम, हमने इंतखाब किया, फॉर आवर विक्टिम, अपने शिकार का, द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीजन, एक सिर्फ वो बच्चा हो, ऑफ अ प्रोमिनेंट मीन्स नुमाया, जो कि अच्छा खासा अमीर हो, जिसका बाबा अमीर हो या अच्छा खासा वो शहरी हो. नेम्ड एबनेज़र डॉर्सेट, जिसका नाम था एबनेज़र डॉर्सेट. ये डॉक्टर था जिसको मिस्टर डॉर्सेट भी कहते थे. ये वहाँ का अपने इलाके का एक नुमाया मीन्स जाना पहचाना शहरी था. मिस्टर डॉर्सेट वॉज नोन फॉर हिज वेल्थ, मिस्टर डॉर्सेट अपनी दौलत के लिए मशहूर था, जाना पहचाना जाता था. विच ही मेड, जो कि उसने बनाई, फ्रॉम लेंडिंग, उधार लेकर. मॉर्गेजेस, मॉर्गेजेस कहते हैं कि जब आप कर्ज के लिए ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, मीन्स के लेंडिंग मॉर्गेजेस, के लोग जब उससे उधार मांगते थे तो उस उधार के बदले वो कोई ना कोई चीज़ उनसे गिरवी रखवा लेता था, चाहे वो ज़मीनें थी चाहे वो पैसे थे. तो जब फिर कोई अदा नहीं कर सकता था तो ये फिर उनको वो जो प्रॉपर्टी थी वो वापस नहीं देता था, और इस तरह ये अमीर होता गया. एंड मेकिंग फॉर क्लोजर्स, फॉर क्लोजर्स कहते हैं जब्त कर लेना, कि लोगों को मॉर्गेजेस मीन्स कि उनको उधार देता था और फिर उनसे चीज़ें गिरवी रखता था. एंड फॉर क्लोजर्स, और जब्त कर लेता था. फॉर क्लोजर्स मीन्स कि उस प्रॉपर्टी को जो लोग इसके पास उधार रखवाते थे या पैसे उधार रखवाते थे उसको वो जब्त कर लेता था अगर वो पैसे अदा ना कर सके. द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10, लड़का 10 साल का था. विद फ्रैकल्स, जिसके चेहरे पर स्पॉट्स थे. आप देखते हैं ना जो वाइट बॉयज़ होते हैं, जो अमेरिकन लोग होते हैं, तो उनके चेहरे पर ब्राउन कलर के
स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं सन एक्सपोजर की वजह से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। एंड ब्राइट रेड हेयर, और ब्राइट मीन्स के बिल्कुल रेड, ब्राइट रोशन सुर्ख कलर के बाल होते हैं। बिल एंड मी, बिल और मैं, फिगर्ड ये अंदाज़ा लगाया, दैट एबिनेजर वुड एग्री, कि एबिनेजर मीन्स जो डॉक्टर डॉर्सेट है वो राजी हो जाएगा, टू पे अदा करने के लिए, अ रैंसम ऑफ $2000, वो हमें 2000 ऑफ रैंसम तवान के लिए हमें देने के लिए राजी हो जाएगा। बट वेट, लेकिन इंतज़ार करें, टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड, अब वो कहते हैं कि ये बताने के लिए कि आया हमें 2000 मिले या नहीं मिले, इंतज़ार करें कि क्या हुआ हमारे साथ। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट, समिट से जो कस्बा था उससे 2 मील के फासले पर, वॉज अ लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन, एक दरख्त जो था जो कि चोटियों से ढका हुआ था, पहाड़ियों से ढका हुआ था, एक पहाड़ी जो कि दरख्तों से ढकी हुई थी, वहां पे वो गया। ऑन द रेयर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वॉज अ केव, इस माउंटेन की एक साइड पे ढलवान थी, यूं स्लोप था, वहां पे एक गार थी। देयर वॉज स्टोर्ड प्रोविजंस, देयर वी स्टोर्ड प्रोविजंस, वहां पर हम अपनी चीज़ों को, अपने सामान को, किडनैपिंग का सामान था, खाने पीने का सामान था, वो हम वहां पे महफूज रखते थे। वन इवनिंग, एक शाम, वी ड्रोव इन अ बगी, हम एक टांगे में, बगी मीन्स अ कार्ट ड्रॉन बाय हॉर्स, एक बगी में हम सवार हुए, पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस, डॉर्सेट्स हाउस के घर के बिल्कुल करीब से। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, बच्चा अपनी गली में था, थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन, एक बिल्ली के बच्चे पर, रॉक्स मीन्स जो ईंटें या छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो फेंक रहा था। ऑन द ऑपोजिट फेंस, अपनी जो बाड़ थी उसकी ऑपोजिट साइड पर, जो मुखालिफ सिमत में, वो एक बिल्ली के बच्चे पर कंकरियां फेंक रहा था। हे सेज बिल, बिल ने कहा, वुड यू लाइक सम कैंडी, क्या तुम कैंडी या टॉफी खाना पसंद करोगे। द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, लड़के ने ईंट का एक टुकड़ा बिल्स के सर पर दे मारा। दैट बॉय पुट अप अ फाइट, उस लड़के ने लड़ाई की, बट इवेंचुअली, लेकिन आखिरकार, वी गॉट हिम इन द बगी, हमने उसे जबरदस्ती बगी में, तांगे में डाल दिया। एंड ड्रोव अप टू द केव, और गार की तरफ रवाना हुए। आफ्टर डार्क, अंधेरी होने के बाद, आई ड्रोव द बगी बैक टू द विलेज, मैंने उस तांगे को दोबारा विलेज की तरफ रवाना किया। आई हैड हायर्ड इट इन, जहाँ से मैंने ये हायर की थी, मीन्स कि मैंने सवारी के लिए इसमें बैठा था। एंड वॉकड बैक, और वापस आ गया। बिल वॉज एग्जामिनिंग, बिल वॉज एग्जामिनिंग, बिल मुआयना कर रहा था, एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेस, और जख्म को ट्रीट कर रहा था, उनका इलाज कर रहा था। एंड ब्रूजेस, और ब्रूजेस जो खराशें उस पर आई थी, ऑन हिज फेस एंड लेग्स, उसके चेहरे और टांगों पर जो खराशें और जख्म आई थी उसको वो ठीक कर रहा था। देयर वॉज अ फायर बर्निंग इन द केव, केव के अंदर, गार के अंदर आग जल रही थी, यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाय इट, और लड़का इसकी साइड पर बैठ गया। विद 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair, with 2 buzzard tail feathers means जो पर होते हैं, stuck in his red hair, अपने सुर्ख बालों में वो लगा देता है। बजर्ड टेल मीन्स, बजर्ड एक वल्चर होता है, मवेशी होता है जो कि अमेरिका के देहातों में होता है, तो उसकी टेल का जो था, पर था, उसको अपने रेड बालों में लगा देता है। यू कैन सी इन द पिक्चर। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी एंड सेज, वो मेरी तरफ स्टिक्स को पॉइंट करता है, स्टिक एट मी, मेरी तरफ इशारा करता है एक स्टिक से, एंड सेज, और कहता है, हा कर्स्ट पेल फेस,
कर्स मीन्स बुरा, बुरा बदुआ देता है या बुरा भला कहता है. पेल फेस, जर्द चेहरे को. डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई रेड चीफ्स कैंप में इंटर होने की. अब वो अपने आप को, जब वो पर लगाता है तो अपने आप को रेड चीफ समझने शुरू कर देता है. कहते हैं कि तुम्हारी, इसको साथ बैठे हुए, कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मेरे इस कैंप में इंटर होने की. अब वो एक फैंटेसी क्रिएट कर रहा है, इमेजिनेशन में चला क्योंकि वो एक मिस्चीवियस शरारती बॉय होता है और अजीबो गरीब बातें करता है. ही इज ऑल राइट नाउ, वो अब बिल्कुल ठीक था. सेज बिल, बिल ने कहा. वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं. आई एम ओल्ड हैंक, मैं एक बूढ़ा हैंक. हैंक बिन जो कैदी होता है. रेड चीफ्स कैप्टिव, रेड चीफ का कैदी. अब बिल कह रहा है कि हम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें एक रेड इंडियन है और इसकी रेड चीफ है और मैं इसका कैदी हूँ. एंड आई एम टू बी स्कैप्ड एट डे ब्रेक. स्कैप्ड कहते हैं सर की जो खाल होती है. एट डे ब्रेक, जैसे सुबह सवेरे होने पर. आई एम टू बी स्कैप्ड एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे होने पर खाल, सर की खाल उतार ली जाएगी. आउच, दैट किड कैन किक हार्ड, ये लड़का बहुत जोर से लात मारता है. दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, वो लड़का बहुत खुश दिखाई देता है. सीम्ड मीन्स दिखाई देना. द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट. द फन ऑफ कैंपिंग आउट, आउट मीन्स बाहर, बाहर जो खैमा हम लगाते हैं, खैमा लगाना, उसका मज़ा. हैड मेड हिम फॉरगेट, उसके मज़े ने इस लड़के को भुला दिया. फॉरगेट मीन्स भुला दिया. दैट ही वॉज अ कैप्टिव, कि वो कैदी है. वो भूल जाता है कि मैं कैप्टिव हूँ. वो कहते हैं कि आप लोग कैप्टिव हो और मैं आपका लीडर हूँ. ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई, वो फौरन मुझे, अब ये सैम को कहता है कि तुम्हारी जो है वो स्नेक आईज हैं. द स्पाई, जासूस, कि तुम एक जासूस हो और तुम्हारी सांप की तरह की आंखें हैं. एंड अनाउंस्ड, और ये ऐलान करता है. दैट आई वॉज टू मीट माई एंड द नेक्स्ट डे, कि मुझे अपने इंजाम, माई एंड इंजाम, कि मुझे अपने इंजाम पर को पहुंचना होगा. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कि जैसे सुबह होगी तो तुम्हें अपने इंजाम को पहुंचना होगा. देन वी हैड सपर, फिर हमने रात का खाना खाया. एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, और उसने भर दिया अपने मुंह को गोश्त के साथ, ब्रेड के साथ, एंड ग्रेवी, और शोरबे के साथ. एंड टॉक्ड, और बातें करता रहा. हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, उसकी गुफ्तगू, स्पीच मीन्स गुफ्तगू, वेंट समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से थी उसकी गुफ्तगू. वी विल रीड इन नेक्स्ट पैराग्राफ. Okay, dear students, it is enough for today, and I hope you will have the better understanding of the unit. If you have any query regarding the reading with translation or understanding of the whole story, you can send me message in my box. Thank you.